हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज मैं अटेंड करने जा रही हूँ वर्कशॉप ऑन लैक्टेशन मैनेजमेंट, क्योंकि एम्स अपने एम्प्लॉयज़ को पढ़ाई का भी चांस देता है। सो ये एक गुड अपॉर्चुनिटीज़ है फॉर एम्स एम्प्लॉयज़। सो चलिए देखते हैं कैसा होगा आज का वर्कशॉप। मेरी जो वर्कशॉप है वो है कन्वर्जन ब्लॉक में। सो मैं इस बहाने आपको एम्स भी दिखा देती हूँ थोड़ा। चलिए मेरे साथ कन्वर्जन ब्लॉक में। यहाँ पर है कार्डियो न्यूरो टावर, CNC बिल्डिंग, और हमारे लेफ्ट में है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, जहाँ पर है मेरा कन्वर्जन ब्लॉक। सो गाइस, ये वाली जगह तो आपने काफ़ी बार देखी होगी। हमारी स्ट्राइक में भी हम इसी जगह इकट्ठे हुए थे स्ट्राइक करने के लिए। सो ये वाली बिल्डिंग है हमारी कन्वर्जन ब्लॉक, जहाँ पर हमारा वर्कशॉप है। और वर्कशॉप का टाइमिंग है 9 to 5। ये है हमारा एंट्रेंस कन्वर्जन ब्लॉक के लिए। सॉरी गाइस। सो हम पहुँच गए हैं कन्वर्जन ब्लॉक, 2nd फ्लोर। सो गाइस, अभी सब लोग आए नहीं हैं और हमारे जो स्पीकर्स हैं वो भी अभी आए नहीं हैं। And this light is a symbol of brightness. And ये क्या है सुमन? sir, left side to side. काटेगा तो नहीं भाई? Early breastfeeding within 1 hour. It has to start from the labor room by doing early skin to skin contact. So I am telling, because I am senior to her, I am telling her just a suggestion how to do it. This is called as quality improvement you want to do in the process. Process is early initiation of breastfeeding. And you have to use a scientific method of collection of data. And if data is missing, why it is missing? Try to do the root cause of that. Try to find out who are the people who are missing. You understand? And then make a team of those people so that they educate and get it implemented. Otherwise, you will collect the data and you will come to know it is not happening. Okay? And you need to have those stakeholders on board, do a meeting, write down, and then make the run chart to show and tell them if they are lagging behind over time, over weeks, what has to be done, and then take some action on that, which may be reinforcement, re-education, or trying to, maybe there are a lot of nurses who are changing, they are not exposed, then talk to the CNO, make sure that there is no you understand? Yes. So do it in a scientific manner. Yeah. This is a quality improvement project. You have to take the stakeholders on board and do the root cause if that is not happening. I am telling you with my experience. Otherwise, you will collect the data, information, and there will be no way you will be able to publish it also. data we are already collecting. मुझे है ना 1 hour का through PDHM
So we need to do it in a quality improvement form. Yeah, we'll do an RCA CAPA and monthly feedback we'll give. This much only we have achieved. From 40%, where are we by January, February? So that will be a motivation for them to achieve, you know. So you have to have the baseline first, Yes. and from the baseline you need Yeah. to decide over 3 months you want to Yeah. get here. Yeah. आपकी सारी nurses जो है QI में mastery है उनकी. So we need to get into a methodology of doing quality improvement Yeah. into it and then Yeah. getting it done. Thank you so Okay, much. all Until unless medically indicated, then practice rooming in and allow the mothers to be with the baby and encourage breastfeeding on demand and give no pacifiers or artificial nipples. Then foster the establishment of breastfeeding support groups. It requires lot of support. I personally am telling you, being a OBG nurse, I wanted to breastfeed my baby. I was not able to succeed. You know, she was going on crying. No demand feeding, scheduled feeding, nothing works out in real life. You know, it's not only for the feeding. They want the warmth of the mother, security of the mother, comfort of the mother. So they just want to come and get attached to the breast of the mother and lie down. Whenever they want, they will take the feed. So the mother should dedicate her 24 hours time only for breastfeeding after delivery. Whenever the baby wants, she must be available. Sometimes baby was sleeping for 6 hours. I was wondering, my God, she is sleeping for 6 hours. What will we do? Then I consulted the neonatal. They said, allow the baby to have its own style of having the feeding. If it sleeps for 6 hours, never panic. It is fine. This is what is the message. Each baby has got its own pattern of establishing the breastfeeding. Each mother will have their own problems of at the family level and at personal level. You know? So it requires a lot of commitment. What is required here is the commitment. Then somebody said, even if 24 hours you तो गाइस हमें अभी यहाँ पर टी ब्रेक मिला है. Skin to skin care and delaying of non-urgent tasks. All this comes in the golden hour. So all of these tasks are important and all of them has benefits to the baby. But we should remember that today our topic is on breastfeeding. So we'll be focusing more on the initiation of breastfeeding. But it has to take place along with all these tasks. So what are the immediate support that we need to initiate and establish breastfeeding? So from the morning session, ma'am has already reiterated the point of counseling. How it is Got the help of both mother and baby and helped get the baby off to a good start in life. This video will show how to care for both the mother and baby right after birth. Help him move onto the nipple. A baby is born with extra stores of water and nutrition. The small amount of rich and protective early milk is all he'll need during the first few days. To protect the baby from infection and increase the mother's milk supply, do not give the baby any sweetened water, tea, formula, or anything other than the mother's breast milk. Feeding only breast milk for the first 6 months is vital for the baby's health. लेकिन मेरे मन में कुछ डाउट्स है बच्चों को लेकर, काफी ज्यादा चिंतित हूँ इस चीज के लिए. बताइए किस बात को लेकर चिंतित है. मैं आपकी हेल्प क्या कर सकता हूँ. मैं आपकी हेल्प के लिए आया हूँ. बच्चा देखिए दूध तो पी रहा है लेकिन रात भर रोता ही रहता है हमेशा. मैं क्या करूँ इस चीज के लिए? अच्छा, तो आप मेरे को बताइए कि बच्चा कहीं वेट तो नहीं है या रात को दूध तो अच्छे से पी रहा है. दिन में तो अच्छे से पी रहा है लेकिन रात में इतना अच्छे से नहीं ले रहा है. और रात को रो रहा है अच्छे रात से. में काफी आपने रोता है. रात को नेपी कितनी बार चेंज किया बच्चे को, या यूरिन पास किया बच्चे ने रात को, देखा आपने? हाँ, बच्चे ने रात में यूरिन पास किया है, 2 या 3 बार पास किया था. अच्छी बात है. देखिए जुबलन जी की लगभग 5 to 6 टाइम ऐसा होता है कि बच्चा यूरिन पास करता है. तो यूरिन पास करते ही बच्चा की जो नेपी है वो
वेट होती है उस समय अपने को काफ़ी ध्यान रखना होता है। एक होता है कि टेम्परेचर भी लो हो जाता है, उससे भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है बच्चे को। तो इसके रिगार्डिंग है कि बच्चा जब भी यूरिन पास करे 6 to 5 टाइम, इसका मतलब ये भी है कि आपका बच्चा अच्छे से फीड कर रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन है आपका कि आपने देखा कि मेरा बच्चा नाइट में भी 2-3 टाइम्स यूरिन पास कर रहा है और आपने नेपी चेंज किया। तो जो बच्चा रो रहा है तो इस चीज़ को अपने को ध्यान रखना होता है कि आप तुरंत अपने को देखना है कि बच्चा क्यों रो रहा है। तो उसका ये मेन रीज़न हो सकता है कि बच्चे का नेपी गीला होगा, उसके कारण वो बच्चा रो रहा है, तो हमें तुरंत चेंज करना है। मैंने तुरंत चेंज किया था, लेकिन हाँ जी। बच्चे का रोना रुक ही नहीं रहा था। तो इसके रिगार्डिंग ये कि आपने जो बच्चा रो रहा था तो लगभग आपने जब दूध पिलाया बच्चे को रात में, तो क्या बच्चा लगभग 10 मिनट तक आपके ब्रेस्ट को सक कर रहा था, निप्पल को? नहीं, 10 मिनट तक नहीं दे रहा था। हाँ, तो ये भी है कि बच्चा नॉर्मली जब दूध पीता है या उसका ये कहते हैं कि पेट भर गया, तो इसके लिए ये होना चाहिए कि लगभग बच्चा 7 से 10 मिनट तक कंटिन्यू आपके ब्रेस्ट को सक करे। तो इससे जब अच्छे से दूध पिएगा तो उसका पेट भर जाएगा, तो शांत हो जाएगा। तो आपको ये देखना है कि मेरा बच्चा क्यों दूध नहीं पी रहा है या सक क्यों नहीं कर रहा। तो उसके लिए कुछ आप देखना है कि आपको कैसे, आप मेरे को बताएंगे करके कि आप अपने बच्चे को दूध कैसे पिला रहे हैं? जी बिल्कुल, बच्चे को मैं हाथ में लेती हूँ। हाँ जी। बच्चा काफी देर सोया हुआ होता है, फिर जब भी जगता है तो मैं छाती से लगा लेती हूँ। हाँ जी। थोड़ी देर लेता है, लेकिन पूरे 10 मिनट तक नहीं लेता है, बार बार छोड़ देता है। तो इसके लिए बार बार छोड़ने के लिए आप कैसे बच्चे को लगाते हैं अपने निप्पल पे, वो मेरे को जरा बताएंगे? ठीक, ये पोजीशन अपने को देखना होता है। यही वो बार बार वही चीज़ आती है कि अपने लिए गुड पोजीशन एंड गुड अटैचमेंट वो अपने को डेमोस्ट्रेट करें। ठीक है, तो इसके लिए आपको अगर 10 से 15 मिनट तक बच्चा सक कर रहा है तो फिर बच्चा नहीं रोएगा और अच्छे से फीड उसका करेगा। और कोई प्रॉब्लम आपके साथ जो फेस कर रहे हो ओवर नाइट या ड्यूरिंग 24 आवर्स? दूध तो आ रहा है सही से, लेकिन मैं सोच रही थी अगर रात को मैं फॉर्मूला पिला सकती हूँ तो। नहीं, ये बहुत ही एक हार्मफुल है, क्योंकि देखिए बच्चों को जितना वो कहते हैं जीवन धारा ही अमृत धारा है, उस चीज़ को लेके अपने को चलना है। तो यही है कि फॉर्मूला फीड से कई तरह की इंटॉलरेंस होती है, कई तरह पेट में जो है बच्चा अच्छे से दूध नहीं पचा पाता है। तो माँ का दूध ही बच्चे के लिए सबसे बेस्ट है, वो अमृत के समान, उसी को पिलाएं। और रही बात कि अच्छे से नहीं आ रहा है, तो ये है बाय गॉड गिफ्ट है कि ये चीज़ कि जितना मिल्क डिमांड चाहिए फर्स्ट डे या फर्स्ट वीक में उतना मिल्क प्रोडक्शन होता है। तो इसके लेके आपको चिंतित नहीं होना है, आपको केवल 10 से 15 मिनट बच्चे को दूध पिलाना है और फिर अच्छे से बच्चा कभी-कभी ये सोचते हैं जैसे दूध खत्म ना हो जाए। नहीं, उस चीज़ को लेके नहीं सोचना, आपको 2-3 आवर्स में फिर ट्राई करना है और फिर बच्चे को अच्छे से फीड कराना। फॉर्मूला फीड या टॉप फीड किसी भी तरह की और ब्रेस्ट फीड के अलावा कुछ भी आपको नहीं देना है, कि वो सब बच्चे के लिए हार्मफुल है। ठीक है, आप किसी भी चीज़ को लेके आप वरीड मत होइए, आपके लिए हम 24 आवर्स अवेलेबल रहते हैं। जो भी आपका क्वेश्चंस हो क्वेरीज हो आप हमें पूछ सकते हैं। आधी रात को भी पूछ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आपके लिए 24 आवर्स यहाँ अवेलेबल रहते हैं स्टाफ, उससे आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। लंच के बाद हमारा स्किल टेस्ट हुआ था। स्किल टेस्ट के बाद फिर दोबारा से हमें टी ब्रेक मिला और उसके बाद अभी हम जा रहे हैं वार्ड्स में सब लोग। सो वर्कशॉप काफ़ी अच्छा था और काफ़ी नॉलेज मिली और इसको हम अपनी बोर्ड में ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे। If you like my video, then subscribe my channel. Thank you guys.